Good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today is your lecture number 21 term, and in this lecture, I am going to complete your chapter 4, that is planning. In my last lecture, I have explained you types of plan. Now, in this lecture, I am going to discuss case study related to all the types of plan. See, beta. In this lecture, I am going to discuss case study questions with you. See question number 1 of case study. Rajinder has been running a successful business of manufacturing traditional wedding wear for women, including saris and lehengas. His friend Surinder, who is engaged in the business of providing web designing solution to his clients, suggests him to explore the option of selling his product online. Rajinder agreed to his suggestion and decided to venture into online business, keeping in view the various e-commerce regulations in order to avoid imposition of any penalty. In order to facilitate the sale of his payment options such as cash on delivery, credit or debit card transactions, net banking to the buyers, etc. ठीक है. तो in the context of the above case, identify the different types of plan mentioned in the above paragraph that relate to the online portal that Rajinder intends to start by quoting lines from the paragraph. Discuss between the two types of plan as identified in para 1. सी बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? राजेंद्र हैज़ बिन रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल वेडिंग वेयर फॉर वुमेन इंक्लूडिंग साड़ीज़ एंड लहंगास. राजेंद्र एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है जिसमें वो ट्रेडिशनल वेडिंग वेयर सेल करता है, दैट इज़ साड़ीज़ एंड लहंगास. हिज फ्रेंड सुरेंदर हु इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग वेब डिज़ाइनिंग सोल्यूशन टू हिज क्लाइंट, सजेस्ट हिम टू एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ सेलिंग हिज प्रोडक्ट ऑनलाइन. सुरेंद्र उसको सजेस्ट करता है कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करे. राजेंद्र एग्री हो जाता है उसके सजेशन से और वो ई कॉमर्स की सारे रेगुलेशंस को देखते हुए इम्पोज करता है, पेनल्टीज़ वगैरह को चेक करते हुए वो फैसिलिटेट करता है सेल करना अपना प्रोडक्ट. एंड राजेंद्र डिसाइड टू ऑफलाइन मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, उसने ऑफर कर देता है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन टू देयर कस्टमर, दैट इज़ कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, नेट बैंकिंग टू द बायर्स एक्सेट्रा. आपको इसमें दो वो बताने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान related to above. See, the different types of plans are rules and method. Are the two different types of plan that related to the online portal that Rajinder intend to start. Rule क्यों है बेटा? Because Rajinder agrees to his suggestion and decide to venture into online business, keeping in view the various e-commerce regulations in order to avoid imposition of any penalties. ठीक है, इसमें रूल क्यों है बेटा? क्योंकि उसने जो ई कॉमर्स के जितने भी वो है रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसको चेक करा है, उसके बाद वो बिज़नेस में एंटर करा है ताकि वो कोई भी पेनल्टी उसको नहीं देनी पड़े. तो इट इज़ रूल. ठीक है. एंड नाउ सेकेंड इज़ मेथड. मेथड क्यों है? हाउएवर ही डिसाइडेड टू ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस सच एज कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, नेट बैंकिंग टू द बायर्स एक्सेट्रा. उसने उसके अलावा जब उसने ऑनलाइन बिजनेस में एंटर हुआ तो उसने कई सारे मेथड अडॉप्ट कर लिए कस्टमर्स को पेमेंट करने के, दैट इज़ कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, नेट बैंकिंग टू द बायर एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो आपका फॉलो हुआ दैट इज़ द मेथड विच ही इज़ अडॉप्टिंग फॉर द पेमेंट ऑप्शन टू द कस्टमर. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड ये आप लिख लीजिएगा बुक में से, इट इज़ गिवन. तो रूल्स एंड मेथड्स का डिफरेंस हो जाएगा. और ये आपका जो है दो जो इसमें केस स्टडी थी दैट इज़ एक्सप्लेनिंग द टू टाइप्स ऑफ प्लान, दैट इज़ रूल एंड मेथड. Now see question number 2 beta. Wazir Ahmed joins Ashiana Limited, a company dealing in real estate, as a human resource manager through a series of interactions with his team. During lunch breaks, he comes to know that quite a few managers at middle and senior level have recently left the organization as their promotions were overdue. Therefore, in order to reinstate the confidence of the staff, he lays out a clear-cut plan consisting of a set of general guidelines for both time-bound and performance-related appraisals of the managers at all the levels. Moreover, he developed a standardized processes containing a series of steps specified in a chronological order for its implementation. In context of the above case, identify the two different types of plan that Wazir Ahmed proposes to implement in order to reinstate the confidence of a staff by quoting lines from the paragraph. Distinguish between the two types of plan as identified in paragraph. देखो जिसमें क्या बताया बेटा आपका, वासिर अहमद एक पर्सन है जिसने आशियाना लिमिटेड रियल इस्टेट का बिजनेस ज्वाइन करा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थ्रू अ सीरीज़ ऑफ इंट्रैक्शन. जब उसने अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से बात करी ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स एंड और उसको पता चला कि फ्यू मैनेजर्स एट मिडिल एंड सीनियर लेवल हैव रिसेंटली लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज ए promotions were overdue. Therefore, in order to reinstate the confidence of the staff, he lays out a clear-cut plan consisting of a set of general guidelines for both time-bound and performance-related appraisals
ऑफ द मैनेजर एट ऑल द लेवल्स। उसने देखा कि कई मैनेजर्स छोड़ गए हैं क्योंकि उनका प्रमोशन ओवरड्यू था, तो उसने फिर एक अपनी पॉलिसी स्टार्ट कर दी दैट उसने जो है कॉन्फिडेंस लेने के लिए स्टाफ को उसने एक रियल कट प्लान बता दिया। फॉर दैट उसने जनरल गाइडलाइंस थी जिसमें टाइम बाउंड था और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स था मैनेजर्स का एट ऑल द लेवल्स। मोर एवर ही डेवलप स्टैंडर्डाइज प्रोसेस कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा जहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप है स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो वहाँ पे जो मेथड अडॉप्ट होता है दैट इज़ प्रोसीजर। ठीक है, इसमें दो चीज़ें थी, दैट वन इज़ टू टाइप्स ऑफ प्लान आर देयर इन दिस केस स्टडी, वन इज़ पॉलिसी एंड अदर वन इज़ प्रोसीजर। पॉलिसी क्यों है बेटा? बिकॉज he lays out a clear cut plan consisting of a set of general guidelines for both time bound and performance related appraisal of the managers at all the level। ठीक है, तो इट इज़ पॉलिसी। और प्रोसीजर क्यों है बेटा? बिकॉज मोर एवर ही डेवलप स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो दैट इज़ प्रोसीजर। और डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर यू कैन नोट डाउन फ्रॉम योर बुक। तो इसमें आपका जो है पॉलिसी और प्रोसीजर दो आपके टाइप्स ऑफ प्लान अडॉप्ट हुए हैं। क्योंकि पॉलिसी क्यों है? बिकॉज उसने एक पूरी वो चेंज कर दिया, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दिया टू द मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स। और प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि उसने मेथड बताया कि किस तरीके से हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। Now see question number 3. Arush joined as a sales manager of a company dealing in naturopathy products. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize, direct, control, or perform any of the other managerial functions efficiently and effectively. Only on the basis of sales forecasting, he would assist in the preparation of the annual plans for its production and sales. Besides, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half-yearly basis. While preparing the sales forecast, he undertake intellectual thinking involving foresight, visualization and issued judgment rather than wishful thinking or guesswork. Most importantly, all these planning activities will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is being carried out. In context of the above case, identify the various features of planning highlighted in the above paragraph by quoting lines from it. फीचर्स ऑफ प्लानिंग बतानी है बेटा। आरुष ने ज्वाइन करा एज अ सेल्स मैनेजर डीलिंग इन नेचुरोपैथी प्रोडक्ट। बीइंग प्रोफेशनल इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म any of the other managerial function. Only on the basis of sales forecasting, he would assist in the preparation of annual plans for its production and sale. बेटा इसमें सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आरुष को पता था कि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग बाकी कोई भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो प्लानिंग प्रोवाइड द बेस, और ये लाइन्स इसको सजेस्ट कर रही है दैट इज़ विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म एनी ऑफ द अबव अदर मैनेजरियल फंक्शंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नंबर 2, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड जो फीचर था दैट इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे वर्क कर रही थी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये कौन सी लाइन्स कोट कर रही हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल प्लान्स फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। इट मीन्स फ्यूचर बेसिस के लिए उसने प्रोडक्शन एंड सेल के लिए उसने पूरा प्लान बना लिया। Number 3, planning is continuous. It is also following in this वो plans need to be continuously made, implemented and followed by another plan and so on till end। तो प्लानिंग क्या हो गई आपकी? फिर प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ये आपका फंक्शन आ गया इसमें। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। फोर्थ फीचर इज प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट, विजुअलाइजेशन एंड इशूड जजमेंट रादर देन विशफुल थिंकिंग और गैसफुल। इट मीन्स ये आपका प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हम पूरी तरीके से सोचते हैं, फोरकास्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं और तब जजमेंट देते हैं। तो वाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फोरकास्ट ही अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट, विजुअलाइजेशन एंड इशूड जजमेंट रादर देन विशफुल थिंकिंग और गैसवर्क। यहाँ से आपको क्या पता चलता है? इट इज़ प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। देन फिफ्थ इज प्लान। फिफ्थ जो फीचर्स में आ रहा है दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी और कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। और जो लाइन्स इसको कोट करिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटी विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ they will coincide with the purpose for which the business is being carried out। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स इसमें फॉलो हो रहे थे और ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं बेटा। अंडरस्टैंड इट केयरफुली और अपने बुक्स के सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। फ्रॉम माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर।